Assalamualaikum viewers, today is second lecture of criminal procedure code और आज का टॉपिक है मोड्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एन अक्यूज्ड बिफोर अ कोर्ट। इस टॉपिक को हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, समझेंगे नोट्स के साथ ताकि आपको भी आसानी हो इस टॉपिक के क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करने में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। Introduction. Under Criminal Procedure Code, when complaints are made against accused, he has to come before the court to defend himself. This is known as appearance. There are different ways an accused can be brought before the court by service of summons, by warrant of arrest, or by proclamation in electronic or print media, and by attachment of property. All of these ways are used to compel an accused to appear before the court. ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जब मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ शिकायत की जाती है तो इसे अपने दफ़ा के लिए अदालत में आना पड़ता है। ये अपीयरेंस यानी हाज़िरी के तौर पर जाना जाता है। मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं जहाँ किसी मुल्ज़िम को अदालत में पेश होने पर मजबूर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला तरीका है सर्विस ऑफ समन, दूसरा है वारंट ऑफ अरेस्ट और तीसरा है प्रोक्लेमेशन एंड चौथा है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। रेलिवेंट प्रोविजन सेक्शन 68 to 89 ऑफ द CRPC डील्स विद द मोड्स ऑफ अपीयरेंस ऑफ एन अक्यूज्ड। CRPC के सेक्शन 68 से लेकर 89 तक डील्स करते हैं मोड्स ऑफ अपीयरेंस ऑफ एन अक्यूज्ड को लेकर। Modes to compel appearance. Following are the modes to compel appearance of the accused before the court. मुल्ज़िम को अदालत में पेश होने पर मजबूर करने के तरीके। First है summons. A summons is a document which is issued by a court informing a person that a complaint has been filed against him. This is a form of legal process that instructs the defendant to appear before the court on a specific day and to answer the complaint made by the plaintiff. पहला तरीका है समन। समन एक ऐसा दस्तावेज़ है जो अदालत की तरफ से जारी किया जाता है जिसमें किसी शख्स को ये इत्तला दी जाती है कि इसके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई गई है। ये कानूनी अमल की एक फॉर्म है जो डिफेंडेंट को एक मखसूस दिन अदालत के सामने पेश होने और मुद्दई की तरफ से की गई शिकायत का जवाब देने की हिदायत करती है। Essential of a summon. Following are the essential of summon. आगे दिए गए पॉइंट्स समन्स के essentials हैं। It must be writing. समन तहरीरी फॉर्म में होना चाहिए। It should bear the signature of the presiding officer of the court or any other person authorized by the court. समन पर अदालत के प्रेजाइडिंग ऑफिसर या अदालत की तरफ से अथोराइज्ड किसी दूसरे शख्स की दस्तखत होनी चाहिए। नेचर ऑफ द ऑफेंस मस्ट बी मेंशन्ड देयर अपॉन। समन में जुर्म की नोयत का जिक्र करना ज़रूरी है। The place where the offence was committed should be mentioned. समन में वो जगह बताई जानी चाहिए जहाँ जुर्म कमिट हुआ था। The point or question which the court intends to put to the accused must be mentioned therein. जिस नुक्ते या सवाल को अदालत मुल्ज़िम के सामने रखना चाहती है इसका जिक्र इसमें होना चाहिए। The date and time required for appearance of the accused must be stated. समन में मुल्ज़िम की पेशी के लिए मतलूबा तारीख़ और वक्त का बताना ज़रूरी है। It should also be mentioned whether accused should appear personally or through counsel. और ये भी बताया जाए कि मुल्ज़िम को ज़ाती तौर पर पेश होना चाहिए या वकील के ज़रिए। The name and place of the court must be mentioned. समन में अदालत का नाम और जगह का भी जिक्र करना ज़रूरी है।
The particular of accused, such a full name, parentage, residential address, etc. should be stated in the summon. समन में मेंशन किया जाएगा मुल्ज़िम का पूरा नाम, वल्दियत और रिहायशी पता. A clear declaration for not leaving the territorial jurisdiction without permission of such court should also be mentioned. अदालत की इजाज़त के बगैर इलाक़ाई दायरा इख्तियार न छोड़ने का वाज़िह तौर पर बताया जाएगा समन में. Service of the summon. According to section 69, the summons as far as is practicable should be served in duplicate upon the accused personally through process server of the court. In case of non-practicable, it can be served through registered post. The person who received the summons should sign a receipt in case of absence of accused. The summon should signed by any adult member of family of the accused on behalf of the accused. Section 69 के मुताबिक जहाँ तक मुमकिन हो सम्मन मुल्ज़िम को ज़ाती तौर पर अदालत के प्रोसेस सर्विस के ज़रिए डुप्लिकेट कॉपी की सूरत में पेश किया जाए. अगर ये काबिल अमल ना हो सके, इस सूरत में इसे रजिस्टर्ड डाक के ज़रिए पेश किया जा सकता है. इस शख्स को सम्मन मौसूल हुआ है, उसे चाहिए कि वो सम्मन पर दस्तखत करे. इन केस मुल्ज़िम के गैर मौजूदगी की सूरत में और मुल्ज़िम की तरफ से मुल्ज़िम के ख़ानदान के किसी बालिग़ फ़र्द को सम्मन पर दस्तखत करने चाहिए. सेकंड है वारंट. वारंट इज़ अ डॉक्यूमेंट which is issued by a court in which police officer is authorized by the court to arrest someone whose name and address is mentioned in the warrant and bring him before the court. वारंट एक दस्तावेज़ है जो अदालत की तरफ से जारी किया जाता है, जिसमें पुलिस अफसर को अदालत की तरफ से इख्तियार दिया जाता है कि वो किसी ऐसे शख्स को गिरफ्तार करे जिसका नाम और पता वारंट में दर्ज है और इसे अदालत में पेश करे. एसेंशियल्स ऑफ वारंट. फॉलोइंग आर द एसेंशियल्स ऑफ वारंट. फर्स्ट एसेंशियल है वारंट का इशुएंस बाय मैजिस्ट्रेट. वारंट शुड बी इशूड बाय द मैजिस्ट्रेट ओनली इफ इट हैज़ बीन इशूड अदर देन रेवेन्यू ऑफिसर. इन दिस केस it would not be a valid warrant. वारंट सिर्फ मैजिस्ट्रेट के ज़रिए जारी करना चाहिए. अगर मैजिस्ट्रेट के अलावा वारंट को कोई जारी करता है तो इस मामले में वारंट को दुरुस्त नहीं समझा जाएगा. वारंट का सेकंड एसेंशियल है राइटिंग. Warrant should be issued in form of writing if it has been verbally ordered to arrest an accused. In this case, it is not a valid warrant. वारंट तहरीरी शक्ल में जारी करना चाहिए. अगर ज़बानी तौर पर किसी मुल्ज़िम को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया, इस सूरत में ये वैलिड वारंट नहीं होगा. थर्ड, साइंड. Warrant should be signed by the magistrate. If it has not been signed by the magistrate, in this case, it is not a valid warrant. वारंट पर मैजिस्ट्रेट के दस्तखत होने चाहिए. अगर मैजिस्ट्रेट की तरफ से दस्तखत नहीं किए गए हैं तो इस सूरत में ये एक दुरुस्त वारंट नहीं होगा. बहुत एसेंशियल है नेम एंड एड्रेस ऑफ अक्यूज्ड. नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड should be mentioned on warrant, and mentioning accused parentage, occupation and residence etc. जिस शख्स की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया जाएगा उसका नाम, पता वारंट पर दर्ज किया जाएगा और मुल्ज़िम की वल्दियत, पेशा और रिहाइश वगैरह का जिक्र किया जाएगा वारंट में. फिफ्थ, सील. वारंट शुड बी सील्ड एट एनी कॉस्ट. If it has not been sealed, in this case, it is not a valid warrant. सील यानी कोर्ट की मुहर. वारंट को किसी भी कीमत पर सील किया जाएगा. अगर इसे सील नहीं किया गया है तो इस सूरत में ये एक दुरुस्त वारंट नहीं होगा. मोड्स ऑफ कंपेल इन अक्यूज्ड का तीसरा तरीका है proclamation. An accused whose appearance is sought
even after using about all method. In this case, proclamation for him is done in electronic and print media. This proclamation is pasted at front side of his house. Court gives 30 days to appear in the court as a final chance. If he gets failed to appear, then he is declared as प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। एक मुल्जिम अदालत में अगर हाजिर ना हो तमाम मेथड यूज़ करने के बाद भी, जैसे कि समन और वारंट के बाद भी, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में ऐलान किया जाता है और इसके पोस्टर बनाकर चस्पा किए जाते हैं उसके घर के सामने की तरफ। इसके बाद अदालत मुल्जिम को पेश होने के लिए 30 दिन की मोहलत देती है। जब मुल्जिम 30 दिन के अंदर कोर्ट में पेश ना हो तो इसे इश्तिहारी मुजरिम करार दिया जाता है। Essentials of Proclamation. Following are the essentials of proclamation. First, by affixing summons on the outer side of door of last residence or his business. डिफेंडेंट के आखिरी रिहाइश गाह या उसके कारोबारी जगह के दरवाजे के बैरूनी हिस्से पर समन चस्पा किया जाएगा। Second, by using electronic ways such as by send an email, fax, telegram, announcement on TV or radio etc. इलेक्ट्रॉनिक तरीके इस्तेमाल करते हुए जैसे कि ईमेल, फैक्स, टेलीग्राम, अनाउंसमेंट करवाई जा सकती है टीवी या रेडियो वगैरह पर। Third, by announcement in the mosque in the locality where defendant resided ever. डिफेंडेंट के मोहल्ले की मसाजिद में ऐलान के जरिए जहां डिफेंडेंट की रिहायश हो। Fourth, by using others modes which court thinks fit for the same. प्रोक्लेमेशन के लिए अदालत जिन तरीकों का इस्तेमाल मुनासिब समझेगी उन तरीकों पर अमल किया जाएगा। अक्यूज्ड को अदालत में पेश करने के लिए चौथा तरीका है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। द कोर्ट विच हैज़ ऑलरेडी इशूड प्रोक्लेमेशन फॉर कंपेलिंग personal attendance of an accused may pass an order for attachment of movable or immovable property or both belonging to the accused. Such order may be passed even before passage or lapse of time limit specified in the order for proclamation. अदालत जो पहले ही किसी मुल्ज़िम को ज़ाती हाज़िरी पर मजबूर करने के लिए प्रोक्लेमेशन जारी कर चुकी हो, अगर फिर भी मुल्ज़िम अदालत में हाज़िर ना हुआ हो तो फिर अदालत उस मुल्ज़िम की प्रॉपर्टी को ज़ब्त करने का हुक्म जारी कर देगी। Conclusion. To conclude, I can say that when someone is accused by plaintiff, in this case, he has to come to the court for his defense as soon as possible. If accused does not come to the court, in this case, court service summons, arrest warrant or make proclamation or attachment of property to produce accused before the court. आखिर में मैं ये कह सकती हूँ कि जब मुद्दई की तरफ से किसी पर इल्ज़ाम लगाया जाता है तो मुल्ज़िम को चाहिए कि जल्द अज जल्द कोर्ट में हाजिर हो। अगर मुल्ज़िम कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तो इस मामले में अदालत मुल्ज़िम को पेश करने के लिए 4 मोड्स का इस्तेमाल करती है, यानी कि इन 4 तरीक़ों का इस्तेमाल करती है। सर्विस समन्स, अरेस्ट वारंट, मेक प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। Thanks for watching and Allah Hafiz.